اس دور کے صلیبی واقع نگاروں کے حوالے سے 2-3 غیر مسلم مورخین نے اس قسم کی غلط بیانی کی ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے مسلسل 2 سال شوبک کو محاصرے میں رکھا اور ناکام لوٹ گیا۔ انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ زنگی کو اس کے مشیروں نے خبردار کیا تھا کہ ایوبی مصر کو اپنے ذاتی تسلط میں رکھ کر فلسطین کا بھی خود مختار حکمران بننا چاہتا ہے۔ وہ فلسطین پر قبضہ کر کے زنگی کو معزول کر دے گا۔ یہ مورخین لکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی نے اس بہانے شوبک کو اپنی فوج روانہ کر دی کہ یہ سلطان ایوبی کے لیے کمک ہے، لیکن اس نے اپنے کمانڈروں کو یہ خفیہ ہدایت دی تھی کہ وہ شوبک کے جنگی امور اپنے قبضے میں لے لیں۔ چنانچہ یہ فوج آئی۔ سلطان ایوبی سے کسی نے کہا کہ نور الدین زنگی نے یہ فوج اس کی مدد کے لیے نہیں بھیجی بلکہ اس کی مرکزی کمان پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجی ہے۔ یہ سن کر سلطان ایوبی دل برداشتہ ہو گیا اور وہ شوبک کا محاصرہ اٹھا کر مصر کو کوچ کر گیا۔ عیسائی مورخین نے زنگی اور ایوبی کی اس مفروضہ چپقلش کو بہت اچھالا ہے، لیکن ان مورخین کی تعداد زیادہ ہے جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ سلطان ایوبی نے 1.5 ماہ کے محاصرے کے بعد شوبک کا قلعہ لے لیا تھا۔ البتہ یہ پتہ بھی ملتا ہے کہ صلیبی تخریب کاروں نے نور الدین زنگی کو سلطان ایوبی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی تھی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ سلطان ایوبی کے والد نجم الدین ایوب لمبی مسافت طے کر کے شوبک پہنچے۔ انہیں شک ہو گیا تھا کہ ان کا بیٹا ایسی حماقت پر اتر ہی نہ آیا ہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تخریب کار اس کے کان زنگی کے خلاف بھر دیں۔ بہاؤالدین شداد اپنی یادداشتوں میں رقم تراز ہے۔ وہ لکھتا ہے، اپنے والد بزرگوار کو دیکھ کر ایوبی بہت حیران ہوا۔ ان کے گھٹنے چھو کر مصافحہ کیا اور سمجھا کہ والد محترم اسے فتح کی مبارکباد دینے آئے ہیں، مگر انہوں نے بیٹے کو پہلے الفاظ یہ کہے، کیا نور الدین زنگی جاہل ہے جس نے مجھ جیسے گمنام اور غریب آدمی کے بیٹے کو مصر کا حکمران بنا دیا؟ کیا مجھے یہ سننا پڑے گا کہ تیرا بیٹا ذاتی اقتدار کی خاطر سلطنت اسلامیہ کے محافظ نور الدین زنگی کا دشمن ہو گیا ہے؟ جاؤ اور زنگی سے معافی مانگو۔ بات کھلی تو معلوم ہوا کہ سلطان ایوبی کا ذہن صاف ہے اور وہ نور الدین زنگی سے کمک مانگنے والا ہے۔ نجم الدین ایوب مطمئن ہو گئے اور واضح ہو گیا کہ یہ صلیبیوں کی تخریب کاری اور عیاری ہے۔ سلطان ایوبی نے اپنے خصوصی قاصد اور معتمد فقی عیسیٰ الحکاری کو اپنے والد محترم کے ساتھ رخصت کیا اور الحکاری کو نور الدین زنگی کے نام ایک تحریری پیغام دیا۔ اس کے ساتھ شوبک کے کچھ تحفے بھی بھیجے۔ اس نے لکھا، بیش قیمت تحفہ شوبک کا قلعہ ہے جو میں آپ کے قدموں میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد خدائے عزوجل کی مدد سے کرک کا قلعہ پیش کروں گا۔ اس پیغام میں سلطان ایوبی نے واضح کیا تھا کہ صلیبیوں کی تخریب کاری سے خبردار رہیں اور یہ نہ بھولیں کہ کچھ مسلمان امراء بھی اس تخریب کاری اور سازشوں میں صلیبیوں کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، ان کی سرکوبی کی جائے۔ اس پیغام میں سلطان ایوبی نے شوبک کی اس وقت کی صورتحال اور اپنی فوج کی کیفیت تفصیل سے لکھی اور کچھ انقلابی تجاویز پیش کی۔ اس نے زنگی کو لکھا کہ ان حالات میں جب دشمن ہماری سرزمین پر قلعہ بند ہے اور وہ میدان جنگ میں ہمارے خلاف سرگرم ہے اور زمین دوز کارروائیوں سے بھی ہمارے درمیان غدار پیدا کر رہا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہماری غیر فوجی قیادت نہ صرف ناکام ہو گئی ہے بلکہ سلطنت اسلامیہ کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ ہم گھر سے دور بے رحم صحراؤں میں دشمن سے برسرے پیکار ہیں۔ ہمارے مجاہد لڑتے اور مرتے ہیں، وہ بھوکے اور پیاس سے بھی لڑتے ہیں، انہیں کفن نصیب نہیں ہوتے، ان کی لاشیں گھوڑوں کے تلے روندی جاتی ہیں اور صحرائی لومڑیوں اور گدھوں کی خوراک بنتی ہیں۔ اسلام کی عظمت اور قوم کے وقار کو جتنا وہ سمجھتے ہیں اتنا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہمارے غیر فوجی حکام اور سربراہوں کے خون کا ایک قطرہ نہیں گرتا، وہ میدان جنگ سے بہت دور محفوظ بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عیش و عشرت کے عادی ہو گئے ہیں۔ دشمن انہیں نہایت حسین اور چلبلی لڑکیوں اور یورپ کی شراب سے اپنا مرید بنا لیتا ہے۔ ہم دین و ایمان کی سربلندی کے لیے مرتے ہیں اور وہ ایمان کو دشمن کے ہاتھ بیچ کر عیش کرتے اور اس کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے لکھا کہ اب جب کہ میں فلسطین کی دہلیز پر آ گیا ہوں اور میں نے فلسطین لیے بغیر واپس نہ جانے کا تہیہ کر لیا ہے، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ غیر فوجی قیادت پر کڑی نظر رکھیں۔ امیر العلماء سے کہیں کہ وہ مساجد میں اور ہر جگہ اعلان کر دے کہ سلطنت اسلامیہ کا صرف ایک خلیفہ ہے اور یہ بغداد کی خلافت ہے۔ ہر مسلمان پر اس واحد خلافت کی اطاعت فرض ہے، لیکن خطبے میں اور کسی مسجد میں خلیفہ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ عظیم نام صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ حکم بھی جاری کیا جائے کہ آئندہ جب خلیفہ یا کوئی حاکم کسی دورے یا معائنے کے لیے باہر نکلے گا تو اس کے محافظ دستے کے سوا کوئی جلوس اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔
और लोग रास्ते में रुक कर और झुक झुक कर उसे सलाम नहीं करेंगे। सुल्तान अय्यूबी ने सबसे ज्यादा अहम बात ये लिखी कि शिया सुन्नी तफरका बढ़ता जा रहा है। फातिमी खिलाफत की माजूली ने इस तफरके में इजाफा किया है। ये तफरीक खत्म होनी चाहिए। बेशक खिलाफत और हुकूमत सुन्नी है, लेकिन किसी सुन्नी हाकिम या अहलकार को ये हक हासिल नहीं कि वो शियों को अपना गुलाम समझे। हुकूमत और फौज में शियों को पूरी नुमाइंदगी दी जाएगी। इस किस्म की कुछ और भी इनकलाबी तजावीज थीं जो सुल्तान अय्यूबी ने नूरुद्दीन जंगी को भेजी। मौरखीन इस पर मुत्तफिक हैं कि जंगी ने इन पर फौरी तौर पर अमल किया। अपने यहाँ भी सुल्तान अय्यूबी ने शिया सुन्नी तफरका प्यार मोहब्बत और अक्ल दानिश से मिटाना शुरू कर दिया। करक में सलीबी सुल्तान अय्यूबी पर जवाबी वार करने पर गौर कर रहे थे। उनकी मरकजी कमान ने कासिदों के जरिए अपनी बिखरी हुई फौज को अहकाम भेज दिए कि मुसलमानों से लड़ने की कोशिश न करें बल्कि निकलने की तरकीब करें ताकि जवाबी हमले के लिए ज्यादा से ज्यादा फौज जमा की जाए। इन अहकाम के साथ ही उन्होंने 40 जांबाजों का एक गिरोह तैयार कर लिया जिसे मजलूम मुसलमानों के बहरूप में शोबक में दाखिल होना और लड़कियों को वहां से निकालना था। सलीबी हुक्मरानों ने इस ख्याल से कि सुल्तान अय्यूबी मिस्र से गैर हाजिर है, वहां अपने तखरीबकारों में इजाफा करने का भी फैसला कर लिया। वो सूडानियों और फातिमियों को जल्द अज जल्द मुत्तहिद करके काहिरा पर कब्जा करना चाहते थे। शोबक और करक के दरमियानी इलाके में बहुत खून बह रहा था। वो सारा इलाका हमवार रेगिस्तान नहीं था। कई जगहों पर मिट्टी और रेतली सिलों के टीले थे और कहीं रेत की गोल गोल टेकरियां थीं जिनमें कोई दाखिल हो जाए तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता था। ऐसे इलाकों में सलीबी भी मर रहे थे और सुल्तान अय्यूबी के मुजाहिदीन भी, और वहां शोबक के वो ईसाई भी मर रहे थे जो मुसलमानों के डर से शहर से करक की समत भाग उठे थे। फजा में गिद्धों के गोल उड़ रहे थे, उनके पेट इंसानी गोश्त से भरे हुए थे। सहराई दरिंदे लाशों को चीर फाड़ रहे थे और मार का आराई का ये आलम था जैसे उफक से उफक तक इंसान एक दूसरे का कश्तो खून कर रहे हों। उस वसी रेगजार में कहीं कहीं नखलिस्तान भी था जहां पानी मिल जाता। थके हारे इंसान, जख्मी इंसान और प्यास के मारे हुए इंसान वहां जा जाकर गिरते। अम्माद हाशिम सुल्तान अय्यूबी की फौज के एक छोटे से दस्ते का कमांडर था। वो शामी बाशिंदा था, इसलिए वो अपना नाम अम्माद शामी बताया करता था। सलीबियों के खिलाफ जो जज्बा हर मुसलमान सिपाही के दिल में था वो अम्माद शामी में भी था, लेकिन उसके जज्बे में इंतकाम का कहर और गजब ज्यादा था। उसके मुतालिक सब जानते थे कि वो यतीम है और उसका सगा अजीज रिश्तेदार कोई नहीं, लेकिन उसे ये यकीन नहीं था कि वो यतीम है या नहीं, क्योंकि उसका बाप उसकी आंखों के सामने मरा नहीं था। वो 13-14 साल की उम्र में घर से भागा था। उस वक्त उसका घर शोबक में था। उसे अच्छी तरह याद था कि उसके बचपन में शोबक पर सलीबियों का कब्जा हुआ था और उन्होंने मुसलमानों का कश्तो खून शुरू कर दिया था। उसका बचपन सलीबियों की दहशत में गुजरा था। उसने मुसलमान जंगी कैदी भी देखे जिन्हें मार मार कर लाया जा रहा था और उसके सामने 2 कैदियों के सर काट दिए गए क्योंकि वो जख्मों की वजह से चल नहीं सकते थे। उसने मुसलमान घरों से लड़कियां अगवा होते देखी और उसने मुसलमानों को बेगार कैंप में जाते देखा। शोबक के मुसलमान कहा करते थे कि जब शहर में ईसाई मुसलमानों को बिला वजह पकड़ पकड़ कर कैंप में ले जाना शुरू कर दें और उनके घरों पर हमले करने लगे तो समझ लो कि उन्हें मुसलमानों के हाथों कहीं शिकस्त हुई है। अम्माद शामी का घर भी महफूज न रहा। उसकी एक बहन थी जिसकी उम्र 7-8 साल थी। उसे वो बहन याद थी, बहुत खूबसूरत और गुड़िया सी बच्ची। घर में उसका बाप था, माँ थी और एक बड़ा भाई भी था। एक रोज अम्माद की गुड़िया सी बहन बाहर निकल गई और लापता हो गई। बाप ने तलाश की मगर कहीं न मिली। एक मुसलमान पड़ोसी ने उसे बताया कि उसे ईसाई उठा ले गए हैं। बाप शहर के हाकिम के पास फरियाद लेकर गया। जो ही उसने बताया कि वो मुसलमान है, हाकिम उस पर बरस पड़ा और उस पर इल्जाम आयद किया कि वो हुक्मरान कौम पर इतना घटिया इल्जाम थोप रहा है। घर आकर बाप ने और अम्माद के बड़े भाई ने ईसाइयों के खिलाफ शोर शराबा किया। इसका नतीजा ये हुआ कि रात को उनके घर पर हमला हुआ। अम्माद ने अपनी माँ और बड़े भाई को कत्ल होते देखा। वो बाहर भाग गया और एक मुसलमान के घर जा छुपा। उसके बाद वो अपने घर नहीं गया क्योंकि उस मुसलमान ने इस डर से उसे बाहर न निकलने दिया कि ईसाई उसे भी कत्ल कर देंगे। थोड़े दिनों बाद उस मुसलमान ने उसे एक और आदमी के हवाले कर दिया जो उसे चोरी छुपे शहर से बाहर ले गया। सुबह के वक्त वो एक काफिले के साथ जा रहा था। बहुत दिनों की मुसाफत के बाद वो शाम पहुंचा। वहां उसे एक अमीर कबीर ताजिर के घर नौकरी मिल गई। अब उसकी यही जिंदगी थी कि नौकरी करे और जिंदा रहे। वो ज़हनी तौर पर बालिग और बेदार हो गया। ये इंतकाम का जज्बा था। इसी जज्बे के ज़ेरे असर उसे फौजी अच्छे लगते थे। उसने ताजिर की नौकरी छोड़कर किसी फौजी आलिम के घर में नौकरी कर ली।
अम्माद ने उसे बताया कि उस पर क्या बीती है और ये भी बताया कि वो फौज में भर्ती होना चाहता है। उस हाकिम ने उसकी परवरिश की और 16 साल की उम्र में उसे शाम की फौज में भर्ती करा दिया। वो इंतकाम के लिए बेताब था। उसे 3-4 मार्कों में शरीक होने का मौका मिला जिनमें उसका जौहर सामने आ गया। 11-12 साल बाद उसे उस फौज के साथ मिस्र रवाना कर दिया गया जो नूरुद्दीन जंगी ने सुल्तान अय्यूबी की मदद के लिए भेजी थी। 2 साल मिस्र में गुजर गए। फिर खुदा ने उसकी ये मुराद भी पूरी की कि वो शोबक पर हमला करने वाली फौज के साथ गया, लेकिन उसे उस फौज में रखा गया जिसे रेगजार में सलीबियों की फौज पर हमले करने थे। वहां वो सलीबियों के लिए कहर बना हुआ था। उसका छापामार सवार दस्ता मशहूर हो गया था। अम्माद शामी अपने सवारों को साथ लिए सहरा में सलीबियों की मुश्क लेता फिरता और भेड़ियों और चीतों की तरह उन पर झपटता, मगर उसके सीने में जो आग लगी हुई थी वो सर्द नहीं होती थी। 1 माह बाद उसके दस्ते में कुल 4 सवार रह गए थे, बाकी सब शहीद हो गए। एक रात उसने उन 4 सवारों से सलीबियों के कमोबेश 50 अफराद के दस्ते पर हमला कर दिया। वो सारा दिन छुप छुप कर उसका पीछा करता रहा। दिन के वक्त वो 4 सिपाहियों से 50 सिपाहियों पर हमला नहीं कर सकता था। उनके ताक़ुब में वो बहुत दूर निकल गया। रात को सलीबी रुक गए और उन्होंने पड़ाव किया, लेकिन बहुत से संतरी बेदार रखे। अम्माद ने आधी रात के वक्त घोड़ों को एड़ लगाई और सोए हुए सलीबियों के दरमियान से इस तरह गुजरा कि बर्छी से दाएं बाएं वार करता गया। उसके चारों जांबाजों का भी यही अंदाज था। उन्हें जो हिलती चीज नजर आई उस पर बर्छियों या तलवारों के वार करते अंधेरे में गायब हो गए। कई सोए हुए सलीबी उनके घोड़ों तले रौंदे गए। संतरियों ने तारीकी में तीर चलाए जो खता हो गए। आगे जाकर अम्माद ने अपने जांबाज सवारों को रोका और उन्हें वहां से आहिस्ता आहिस्ता पीछे लाया। उसने ये भी न सोचा कि दुश्मन बेदार हो चुका है। वो घुड़सवारों को फिर करीब ले गया और एड़ लगाने का हुक्म दे दिया। अंधेरे में उसे साए से घूमते फिरते नजर आ रहे थे। 5 घोड़े सरपट दौड़ते उनके दरमियान से गुजरे, मगर अब वो दुश्मन पर वार करके आगे गए तो वो 5 की बजाय 3 थे। 2 को सलीबी तीरंदाजों ने गिरा लिया था। अम्माद का खून और ज्यादा जोश में आ गया। उसने अपने मुजाहिदों से कहा, अभी इंतकाम लेंगे। ये उसकी हिमाकत थी। उसने अपने दोनों मुजाहिदों को मोड़ा और सलीबियों के करीब आहिस्ता आहिस्ता आकर हमले का हुक्म दे दिया। अब तो घोड़े भी थक गए थे और दुश्मन पूरी तरह बेदार था। इस हमले का नतीजा ये हुआ कि अम्माद अकेला रह गया। अब कि वो दुश्मन में से निकला तो उसके साथ अपने 2 साथियों की बजाय 2 सलीबी थे जो उसका ताक़ुब कर रहे थे। अंधेरे में उसने उन्हें उनकी ललकार से पहचाना, वरना वो उन्हें अपने साथी समझ रहा था। वो उसके सर पर पहुंच गए। उन्होंने उस पर तलवारों से हमला किया। उसके पास लंबी बर्छी थी। दौड़ते घोड़े से उसने दोनों का मुकाबला किया। घोड़ा घुमा घुमा कर आमने सामने आकर मार का लड़ा। लड़ाई खासी लंबी हो गई और वो दूर हटते चले गए। आखिर अम्माद ने दोनों सलीबियों को मार लिया और दोनों के घोड़े शोबक भेजने के लिए पकड़ लिए। उनकी तलवारें भी ले ली, मगर उसे ये ख्याल न रहा कि कहां तक जा पहुंचा है। उसने घोड़े को और अपने आप को आराम देने के लिए एक जगह कयाम किया, लेकिन वो सोने से डरता था क्योंकि किसी भी वक्त और कहीं भी वो दुश्मन के नरगे में आ सकता था। उसने रात जागते गुजार दी। सितारे देखकर उसने ये मालूम कर लिया कि शोबक किस तरफ और करक किस तरफ है और उसे सहरा में कौन सी जगह जाना है जहां उसे अपना कोई दस्ता मिल जाएगा। सुबह होते ही वो चल पड़ा। वो सहराओं में जना पला था। भटकने का कोई खतरा नहीं था। वो तजुर्बाकार छापामार था। खतरे को दूर से सूंघने की अहलियत रखता था। उसे दूर दूर सलीबी 4-4 या 5-5 की टोलियों में जाते नजर आए। अगर उसके पास 2 फालतू घोड़े न होते तो किसी टोली पर हमला कर देता। वो बचता बचाता अपनी राह चलता गया। रास्ते में उसे किसी जगह घोड़ों और ऊंटों के मुर्दार और सलीबी सिपाहियों की लाशें पड़ी नजर आईं, जिन्हें गिद्ध और लूमड़ियां खा रहे थे। उनमें उसके अपने साथियों की लाशें भी होंगी। वो चलता गया और सूरज उफक पर चला गया। आगे टीलों का इलाका आ गया, जिसमें से रास्ते हर चंद कदम पर घूमते थे। जहां डर था कि सलीबियों की कोई टोली रात के लिए कयाम करेगी, वो सूरज गुरूब होने से पहले वहां से निकल जाना चाहता था। ये डर भी था कि किसी टीले पर कोई तीरंदाज न बैठा हो। वो हर तरफ ऊपर ऊपर देखता चलता गया। आगे रास्ता 2 टीलों के दरमियान से मुड़ता था। वहां से वो मुड़ा तो अचानक उसे किसी के दौड़ते कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई आदमी साथ वाले टीले के पीछे छुप गया था। उसने घोड़े की बाग को झटका दिया और एड़ लगाई। तेज रफ्तार से वो टीले के पीछे गया तो आगे रास्ता एक और टीले ने बंद कर दिया था। ये जगह एक वसी खड्ड बनी हुई थी। अम्माद से कोई 20 कदम दूर मैले कुचैले से चुगे वाला एक आदमी हाथों और घुटनों के बल टीले पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। अम्माद की तरफ उसकी पीठ थी। उस आदमी का सर ढका हुआ था। वो आदमी निहत्ता मालूम होता था।
अम्माद ने उसे ललकारा मगर वो टीले पर चढ़ने की कोशिश करता रहा। टीला मुश्किल किस्म का था। अम्माद आगे चला गया। उस आदमी ने एक कोशिश और की मगर कहीं हाथ पांव न जमा सका। वो निढाल हो चुका था। टीले से उसकी गिरफ्त ढीली हो गई और वो लुढ़कता हुआ अम्माद के घोड़े के कदमों में आन पड़ा। उसके सर से चुगे की ओढ़नी वाला हिस्सा उतर गया। अम्माद ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक लड़की थी और इतनी खूबसूरत कि उसने पहले कभी देखी नहीं थी। अम्माद घोड़े से उतरा। लड़की खौफजदा थी। उसकी रही सही कुव्वत भी खौफ ने खत्म कर दी। वो उठी मगर बैठ गई। अम्माद ने उससे पूछा कि वो कौन है। उसने जवाब दिया, पानी पिलाओ। अम्माद ने एक घोड़े से पानी की छागल खोलकर उसे दे दी। उसने बेताबी से पानी पिया और उसकी आंखें बंद होने लगी। अम्माद ने उसे खाने के लिए कुछ दिया जो उसके पेट में गया तो उसके चेहरे पर जिंदगी के आसार नजर आए। अम्माद ने उसे कहा, मुझसे डरो नहीं, बताओ कौन हो। उसने थकी हारी जबान में कहा, शोबक से अपने खानदान के साथ चली थी, सब मारे गए हैं, मैं अकेली रह गई हूँ। मुसलमानों ने रास्ते में हमला कर दिया था। अम्माद ने कहा, मुझे सच क्यों नहीं बता देती कि तुम कौन हो? तुमने जो कुछ कहा है झूठ है। उसने खौफजदा लहजे में कहा, झूठ ही सही, मुझ पर रहम करो और मुझे करक तक पहुंचा दो। अम्माद ने कहा, शोबक तक? मैं तुम्हें शोबक तक ले जा सकता हूँ, करक नहीं। तुम देख रही हो कि मैं मुसलमान हूँ। मैं रास्ते में ईसाई फौज के हाथों मरना नहीं चाहता। लड़की ने कहा, फिर मुझे एक घोड़ा दे दो। मैं लड़की हूँ, अगर रास्ते में किसी के कब्जे में आ गई तो जानते हो कि मेरा अंजाम क्या होगा। अम्माद ने कहा, मैं तुम्हें घोड़ा भी नहीं दे सकता, तुम्हें यहाँ से अकेले रवाना भी नहीं कर सकता। अम्माद ने कहा, यह मेरा फर्ज है कि तुम्हें अपने साथ शोबक ले जाऊं। लड़की ने कहा, वहां मुझे किसके हवाले करोगे? अम्माद ने कहा, अपने हाकिमों के हवाले करूंगा। उसे तसल्ली दी, तुम्हारे साथ वो सुलूक नहीं होगा जिसका तुम्हें डर है। लड़की करक जाने की जिद कर रही थी। अम्माद ने उसे बताया कि उन्हें हुक्म मिला है कि शोबक के किसी ईसाई बाशिंदे को वहां से भागने न दिया जाए। इसके अलावा उसने लड़की को खबरदार किया कि वो करक तक नहीं पहुंच सकेंगे। वो चूंकि गोरी रंगत की खूबसूरत लड़की थी, इसलिए लड़की को ये डर था कि ये मुसलमान फौजी उसे बेआबरू करेगा। उसने सोचा कि क्यों ना उसके साथ आबरू का ही सौदा करके इसे कहा जाए कि वो इसे घोड़ा दे दे। लड़की ने अपना रवैया तब्दील कर लिया और अम्माद से कहा, मैं बहुत थकी हुई हूँ, आज रात यहीं कयाम किया जाए, सुबह शोबक को रवाना हो जाएंगे। अम्माद भी थका हुआ था। घोड़ों का भी यही हाल था। वो लड़की की हालत भी देख रहा था। उसने वहीं रुकने का फैसला कर लिया। इससे पहले लड़की ने उसे गौर से नहीं देखा था। उसने यही देखा था कि ये बड़ी हुई दाढ़ी वाला मुसलमान फौजी है जो जिस्म की साख्त और गर्द से अटे हुए चेहरे से वहशी लगता है। उससे उसे रहम की उम्मीद नहीं थी। अब जबकि उसने कुछ और सोच ही लिया था, उसने अम्माद को गहरी नजरों से देखा। उस वक्त अम्माद भी उसे गहरी नजरों से देख रहा था और सोच रहा था कि इस कदर हसीन लड़की का इस सहरा में अकेले रह जाना, जहां सलीबी और इस्लामी सिपाही लंबे अरसे से भूखे भेड़ियों की तरह भागते दौड़ते फिर रहे हैं, इसके लिए कितना खतरनाक है। और ये भी हो सकता है कि इस लड़की पर सिपाही या कमांदार आपस में लड़ मरें। वो खुद भी फरिश्ता नहीं था। उसने लड़की की आंखों में झांका। उस वक्त लड़की उसे देख रही थी। अम्माद ने कोशिश की कि वो लड़की से नजरें फेर ले, मगर लड़की की आंखों ने उसकी आंखों को गिरफ्तार कर लिया। उसने अपने अंदर कोई ऐसा जज्बा महसूस किया जो उसके लिए अजनबी था। उसने एक बार नजरें झुका ली, मगर आंखें अपने आप फिर ऊपर उठ गईं और वो बेचैन सा होने लगा। लड़की के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अम्माद ने आहिस्ता से कहा, शायद तुम कुंवारी हो। लड़की ने कहा, हाँ, और जरा भी सोचे बगैर कह दिया, मेरा दुनिया में कोई नहीं रहा। अगर मेरे साथ करक चलते हो तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी। अम्माद बेदार सा हो गया। उसने कहा, फिर तुम मुझे कहोगी कि अपना मजहब तब्दील कर लो, जो मैं नहीं कर सकूंगा। तुम शोबक चलकर मेरे साथ शादी करो और मुसलमान हो जाओ। लड़की ने कहा, मुझे बहरहाल करक जाना है। अगर मेरे साथ वहां तक चलोगे तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। लड़की ने सौदेबाजी शुरू कर दी, लेकिन अम्माद कुछ और ही सोच रहा था। ये सोच ऐसी थी जिसे वो समझ भी नहीं सकता था। वो बार बार लड़की के चेहरे, उसके रेशमी बालों और आंखों को देखता और सर झुकाकर सोच में खो जाता। लड़की की जैसे वो कोई बात सुन ही नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद लड़की का चेहरा गहरी शाम की तारीकी में छुप गया। उसने घोड़े के साथ बंधे हुए थैले में से खाने की 2-3 चीजें निकाली, लड़की को दी और खुद भी खाई। उसका जिस्म इस कदर निठाल था कि जूं ही लेटा उसकी आंख लग गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए
اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔